بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر جریاں نہیں آتی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن جیسی بیماری نہیں لگتی۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کروا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودود یا سلام۔ گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، وزن اٹھانے سے قبل لیمو چاٹ لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ کام کے دوران نیند آئے یا سستی پڑ جائے تو ادرک والا پانی پیو۔ ناک میں کیڑے وغیرہ چلے جائیں تو انگلی پر ارکے گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا نکل آئے گا۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے سوتے وقت ایک کالی کشمش کھا لیا کرو۔ بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں کے درد اور لیکوریا کو مستقل ختم کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 20 دن تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیا کریں۔ بڑھاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو منہ میں ڈال لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، صبح ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی منہ میں ڈال لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح آپ کا سانس نہیں پھولے گا۔ بیڑ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام خوری ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کی پرابلم ہو جائے وہ لوگ گڑ والا شربت بنا کر پی لیا کریں، بواسیر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تیز تیز پیدل چلنے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے میں جلدی کیا کرو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ روزانہ خوشبو لگانے سے جسم کی طاقت کبھی کم نہیں ہو پائے گی۔ ناظرین، دنیا کی اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ بچے ہوئے سالن کو گھر کی چھت پر پھینکنے سے گھر میں آسیب آنے کا خدشہ ہے۔ سفید چاول کھانے سے
बंदे के जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। नाजरीन, बाजरे की रोटी खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। जिन औरतों के चेहरे पर गैर जरूरी बाल हों, वो चेहरे पर लीमू के छिलके मसलती रहें। गैर जरूरी बाल बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। किशमिश खाने से रंग निखरता है। शाम के वक्त केला खाने से सीने में बलगम पैदा होती है। नाजरीन, नीम गर्म दूध में शहद शामिल करके पीने से दिमाग ताकतवर होता है। हाजमा खराब हो जाए तो कच्चा शलजम छिलके समेत खाओ, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। इमली का अचार खाने से पखाना खुलकर आता है। जिन बच्चों की छोटी उम्र में नजर कमजोर हो जाए, उनकी आंख में छोटी मक्खी का शहद डाल दिया करो, नजर तेज हो जाएगी। अगर सेब दोपहर के वक्त खा लिया जाए तो वो खून में इजाफे का सबब बनता है। अगर बदन में एलर्जी का मसला हो तो नहाने से चंद मिनट कबल पानी में कद्दू का तेल डालकर जिस्म की मालिश कर लें और फिर नहा लें। नाजरीन, करेले का पानी रोजाना पीने से चेहरे के दाने, दाग धब्बे कभी नहीं बढ़ेंगे। चेहरा साफ और शफाफ नजर आएगा। जिस घर में प्याज का पौधा लगा हो, वहां पर बिच्छू नहीं आएंगे। जिस घर में लीमू का पौधा हो, वहां मच्छर नहीं आएंगे। डिप्रेशन में गुलाब का फूल सूंघ लो। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप कैलोरीज ज्यादा जला सकते हैं। मछली का तेल आपकी नजर को तेज करता है। गाजर का जूस पियो, कैंसर की बीमारी कम होती है। रोजाना 8 गिलास पानी पियो, जिल्द की बीमारी नहीं होगी। सब्ज टमाटर खाओ, पट्ठों का दर्द दूर हो जाता है। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। नाजरीन, गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। बढ़ते हुए पेट के लिए सुबह के वक्त अदरक वाले पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। हकीम फरमाते हैं कि किशमिश ऐसा दाना है जिसको रोजाना इस्तेमाल करने के बेहद फवायद हैं। किशमिश खून के अंदर शुगर की सतह को नॉर्मल रखती है। किशमिश हड्डियों की मजबूती के लिए निहायत मुफीद है। किशमिश कैंसर से बचाव और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। किशमिश खून की कमी पूरी करने के लिए बेहद मददगार है। किशमिश आपके बदन में घोड़े जैसी ताकत पैदा करती है। कब्ज और मैदे की तजाबियत दूर करती है। 10 दाने रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह निहार मुंह खा लें। बचा हुआ पानी पी जाएं। केले का जूस पियो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी मोटापा कम करने के लिए निहायत मुफीद है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस मल लिया जाए तो खारिश दूर हो जाती है। बादाम का तेल चेहरे की जिल्द पर लगाने से जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। गुड़ गर्म करके नाक में मसल देने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से चेहरे की जुड़ियां गायब हो जाती हैं। नाजरीन, जब पसीना आए तो गर्म पानी पी लिया करो। जिंदगी भर फेफड़े खराब नहीं होंगे। खीरा दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। नाजरीन, नाश्ता ना करने से वजन में इजाफा होता है। अंगूर अंग अंग से बीमारियां निकाल देता है। बदन की और मैदे की कमजोरी के लिए बकरी के दूध में साबूदाना पका कर खाएं। कुव्वते बाह में इजाफे के लिए प्याज का इस्तेमाल
दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। हद से ज्यादा खाना दिमाग को कमजोर करता है। सर पर तेल डालने से दिमाग को कुव्वत मिलती है। जिस्म में पानी की कमी होने की अलामात: गहरे पेशाब का आना, होंठों का खुश्क रहना, सर में दर्द होना, बार बार कब्ज का हो जाना, पट्टों में दर्द होना, आंखों का खुश्क होना। नहाने से कबल अपनी दाढ़ी को अलग अलग धो लिया करें। दाढ़ी के बाल भी नरम हो जाते हैं। दाढ़ी के बालों की सख्ती दूर हो जाती है। कमर में दर्द रहता हो तो सोने से कबल उल्टा लेट लिया करो। कमर पर थोड़ी सी वजनी चीज रख दिया करें, दर्द दूर हो जाएगा। जब सोने का इरादा हो तो नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लिया करो। नींद जल्दी और पुरसुकून आएगी। पेट की चर्बी, वजन में इजाफा और मर्दाना कमजोरी का इलाज सिर्फ एक फल खाने से है, वो है जामुन। जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, उनको फालिज का खतरा ज्यादा होता है। रंग को गोरा करने के लिए कलवंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर किसी मियारी साबुन से चेहरे को धो लें, स्याह रंगत साफ हो जाएगी। माथे पर हाथ रखकर मत बैठा करो, इससे घर में नहुसत आती है। कद्दू का सालन खाने से फालिज की बीमारी करीब नहीं आती। दाढ़ी रखने वाले अफराद को कुव्वते बाह में कभी कमी नहीं आती। घोड़े की सवारी करने से कमर का दर्द कभी नहीं उठेगा। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लिया करो। चेहरे की शादाबी 80 साल तक बरकरार रहेगी। घर में मर्द का हाथ पर मेहंदी लगाना घर में रिज़्क तंग कर देता है। जानबूझकर चूंटियों के ऊपर से गुजरना रिज़्क को तंग कर देता है। किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूकने से रिज़्क कम हो जाता है। सब्ज रंग गौर से देखने से नजर तेज होती है। सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आ जाता है। जिस घर में औरतें बालों को संवार कर और सर पर दुपट्टा लेकर खाना बनाती हैं, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और खाने का जायका भी बेहतरीन बनता है। पॉपकॉर्न सेहतमंद तरीन खाने की चीज है। ये हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल खाएं। ये चर्बी को दूर करता है, कब्ज दूर करता है। दिन में 3 मर्तबा आहिस्ता और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस जरूर किया करें, इससे दिमाग पर सुकून हो जाता है। घर में सांप बच्चे पैदा करे तो घर में मुसीबत आती है। घर में मक्खियां ज्यादा हो तो बीमारियां आती हैं। आपका मैदा तब नकारा हो जाता है जब आप खाने के बाद पानी पीते हैं। सुबह को जल्दी जल्दी चल लिया करो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। अगर गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, गुस्सा जाता रहेगा। जिस औरत या मर्द की उम्र 40 साल हो जाए, वो चुकंदर और माल्टे का रस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करे। जो भी दवा और जो भी चीज जबान को कड़वी महसूस हो तो समझ जाओ उसमें सेहत और खूबसूरती के हजारों ज़खायर हैं। मटर खाने से जिल्द नरमो मुलायम रहती है। अगर पेट की कोई बीमारी हो तो अपने घर में मसूर की दाल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अखरोट खाने के बाद चाय मत पिएं, ये खांसी का बाइस बनेंगे। अंदरूनी चोट का दर्द खत्म करने के लिए पानी में नमक मिलाकर गर्म कर लें और चोट वाली जगह पर लेप करें।
दर्द में कमी आएगी। सिरके को गर्म कर ले और फिर इसे दवा की मानिंद बूंद बूंद करके कान में टपकाएं। कान का दर्द खत्म हो जाएगा। गर्दन पर तेल लगाने से सुस्ती दूर हो जाती है। नाक में तेल डालो, वजन कम हो जाता है। अगर वजन बढ़ाना चाहते हो तो रोजाना केला खाया करो, ऊपर से नीम गर्म दूध पियो। अगर किसी को जुकाम हो जाए और घर के दूसरे लोग जुकाम के वायरस से बचना चाहते हैं तो प्याज को 4 हिस्सों में काटकर प्लेट में रखकर कमरे में रख दें। दोपहर को 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज को तहफ़्फ़ुज़ देती है। शादी में रुकावट का मसला हो तो नमाज़े इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 1 मर्तबा सूरत मरियम की तिलावत करें। मकसद पूरा होने तक ये अमल करें। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। मीठे मशरूबात ज्यादा पीने से गुरेज किया करो। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाने से सुस्ती दूर हो जाती है। मुस्कुराहट जिंदगी के 7 साल बढ़ा देती है। रोजाना 1 लीमू खाने से मोटापा कम होता है। दवा खाने के फौरी बाद नहीं लेटना चाहिए। चावल उबालकर खाने से रंगत खूबसूरत हो जाती है। खाना खाने के बाद सौंफ की धुनी लेने से खाना जल्द हजम हो जाता है। ऊंट का गोश्त खाने से फालज वाले मरीज भी ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी हर नेक जायज ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नाजरीन, याद रहे किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।